ناظرین، سائنسی ترقی نے جہاں انسان کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے، وہیں دنیا کی تباہی کے ممکنہ طریقوں کے امکانات کو بھی بہت حد تک بڑھا دیا ہے۔ مصنوعی ذہانت سے لے کر ایٹمی اسلحہ تک انسان یقیناً اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بہت سے طریقوں سے واقف ہو چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے متعدد بار خبردار کیا ہے کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے اور شاید اگلے 100 سالوں تک ہماری یہ دنیا اور اس کے ساتھ ہم خود یعنی انسان بھی ختم ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ایک ایٹمی جنگ ہوگی، اس دنیا اور انسانوں کو ختم کر دے گی۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے پاس 15,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جبکہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے صرف 50 تا 100 ایٹم بم ہی کافی ہیں۔ تو کسی ایٹمی حملے کے نتیجے میں یا فصلوں کو تباہ کرنے والے کسی وائرس یا کسی وبائی مرض کی وجہ سے یا بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے پڑنے والا قحط اس تباہی کا باعث ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ خطرات کے حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، انسان کئی دہائیوں سے اربوں ڈالر خرچ کر کے کائنات میں کہیں کسی دوسری مخلوق کی موجودگی کے آثار تلاش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے سائنسدان کسی دوسرے سیارے کی خلائی مخلوق سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مسلسل خلا میں ریڈیو سگنلز بھیج رہے ہیں۔ تاہم اسٹیفن ہاکنگ جیسے چند سائنسدان اس عمل کو ایک خطرناک کھیل سمجھتے ہیں جو تمام نوع انسانی کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کولمبس جب امریکہ پہنچا، اس نے وہاں کی مقامی آبادی کے بڑے حصے کا صفایا کر دیا تھا۔ اگر کوئی خلائی مخلوق زمین پر آتی ہے، غالب امکان یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتی ہے۔ ناظرین، زومبی اس مردے کو کہتے ہیں جو زندہ ہو گیا ہو۔ اس موضوع پر ہالی ووڈ نے کئی فلمیں بھی بنائی ہیں۔ تو یہ خیال کہ مردے زندہ ہو کر آ گئے اور انہوں نے باقی زندہ انسانوں کو مارنا شروع کر دیا محال لگتا ہے، تاہم ایسی سائنسی ریسرچ موجود ہے اس کے مطابق زومبی کا خیالی تصور حقیقت بن سکتا ہے۔ زندہ لاشوں کے اس تصور کو سمجھنے کے لیے متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ دماغ کے اندر موجود پیراسائٹس اور پھر نینو بوٹس یعنی انسان کے سیلز کے سائز کے برابر چھوٹے روبوٹس تو اکیلے یا بہت بڑی تعداد میں انسانی جسم میں داخل کر کے اس شخص سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے، یا پھر نیوروٹاکسن یعنی دماغ میں پیدا ہو جانے والے زہریلے کیمیکلز جو کسی کی پوری شخصیت کو بدل سکتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی انسان کو پاگل بنانے کا باعث بن سکتی ہے اور پھر ایسا انسان طیش میں آ کر دیگر انسانوں کو قتل کرنا شروع کر سکتا ہے۔ سو ضروری نہیں کہ یہ تصور محض تخیل ہی ہو، بلکہ یہ حقیقت بھی بن سکتا ہے اور کسی حد تک مائنڈ کنٹرول کرنے والی ایسی ادویات کا استعمال کیا بھی جا رہا ہے جس میں کسی شخص سے وہ کام کروایا جا سکتا ہے تو ممکن ہے وہ عام زندگی میں کبھی نہ کرنا چاہے۔ ناظرین، چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر زمین نے کبھی اپنے پولز یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی کی پوزیشنز کو تبدیل کیا، یہ عمل انسانوں کو خلا سے آنے والی سولر ونڈز اور ریڈیشنز کے سامنے غیر محفوظ بنا دے گا اور یہ چیز انسان کی مکمل تباہی کے لیے کافی ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہی عمل مریخ پر بھی ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کا مقناطیسی میدان کمزور پڑ گیا اور یوں اس کا کرۂ فضائی ختم ہو گیا اور فضا کا خاتمہ ہونے سے اس سیارے پر درجہ حرارت میں ایسی تبدیلی آئی کہ یہاں زندگی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا ہی ہماری زمین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ خلائی بستیاں انسانوں کا ممکنہ مستقبل ہیں۔ ناسا پہلے ہی اس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے مریخ کو چنا گیا ہے۔ چاند پر بستی بسانا بھی اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ یہ خلائی بستیاں زمین پر انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کا ایک بہترین سلوشن ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کرۂ ارض کے لیے ایک مسئلے کی وجہ بھی بن سکتی ہیں تو وہ یہ کہ اگر کسی خلائی بستی نے بغاوت کر دی اور زمین پر ایٹمی حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ان خلائی بستی والوں کو زمین پر ایسا کسی حملہ کرنے کی صورت میں اپنے خاتمے کا خوف نہیں ہوگا۔
नाज़रीन, कंप्यूटर्स और मसनूई ज़हानत के हामिल रोबोट्स पहले ही हजारों इंसानों की नौकरियों पर काबिज हो चुके हैं और दिखाई ये देता है कि मुस्तकबिल में इंसानों के लिए ज्यादा नौकरियां नहीं बचेंगी। बस एक मरतबा कंप्यूटर के जी शऊर और इंसानों की तरह जज्बात और महसूसात को समझ सकने के हामिल होने की देर है। फिर बकौल एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग उस वक्त इंसानियत का खात्मा हो जाने का खतरा मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोटर गाड़ियों के आने से घोड़े की अहमियत खत्म हो गई थी। इस बारे में नजरिया ये है कि इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हामिल कंप्यूटर्स का बाहमी मिलाप हो जाने से ये कंप्यूटर्स हम इंसानों से ज्यादा ताकतवर और ज़हीन हो जाएंगे और ये इंसानों को अपने साथ एक वसी तर जंग में झोंक देंगे। नाज़रीन, तेजी से बढ़ती हुई इंसानी आबादियां जंगलों को मुसलसल तबाह बर्बाद कर रही हैं। इसमें समंदर, जंगल, सहरा और पहाड़ सब शामिल हैं जिन्हें इंसान नुकसान पहुंचा रहा है। जंगलों की तबाही से इंसान बड़ी तेजी से जंगली हयात की बहुत सी अक़साम और नस्लों को खात्मे के खतरे की तरफ धकेल रहा है। इससे कुदरत की तरफ से हमारे कुर्रा अर्ज पर कायम हयातियाती साइकिल का तवाज़न बिगड़ने का अंदेशा है, जो यहाँ पर जिंदगी को रवां दवा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये तवाज़न खराब हो जाता है तो ये मुश्किलात और मुसीबतों को दावत देने वाली बात है। कुदरत के निज़ाम में जो बैलेंस है उसके साथ हम मुसलसल छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमें कभी जंगलों की आग की सूरत में तो कभी सुनामी की सूरत में नजर आता है। नाजरीन, वैसे तो साइंसदानों का मानना है कि सूरज 5 बिलियन साल तक यूं ही चमकता रहेगा और दूसरे सैयारों के साथ साथ हमारी जमीन को भी अगले 1 बिलियन बरस तक हरारत मुहैया करता रहेगा, जो यहाँ पर मौजूद जिंदगी के लिए अज़हद जरूरी है। ताहम ये इम्कानात भी हमेशा से मौजूद रहे हैं कि अंदाजों के बरक्स सूरज की मौत कबल अज़ वक्त हो जाए। इस खतरे की वजह यह है कि सूरज अक्सर अचानक अपने औसत दर्जा हरारत की निस्बत कुछ ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि सूरज ठंडा होता चला गया और दोबारा गर्म न हुआ तो यकीनन जमीन खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हम एक टिक टिक करते हुए टाइम बम पर बैठे हैं जिसका नाम अर्थ कोर है, यानी जमीन का अंदरूनी मरकजी हिस्सा जो अभी भी इंतहाई गर्म है। आज से तकरीबन 75,000 साल पहले जमीन के इस मरकजी हिस्से से गर्म लावा बहुत शिद्दत के साथ जमीन की बैरूनी सतह को फाड़ कर बाहर निकला और इसने ठंडा होने पर सख्त होकर जमीन की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इसी जगह पर आजकल मौजूदा भारत और पाकिस्तान वाक़े हैं। इस वाक़े ने मगर जमीन पर बसने वाली तकरीबन 95% जिंदगी को खत्म कर दिया था। साइंसदान कहते हैं कि अगले 80 सालों में ऐसा ही एक और वाक़या रूनुमा होने के इम्कानात मौजूद हैं। खुशकिस्मती से आज हम साइंसी लिहाज से इस काबिल हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कबल अज़ वक्त इसका पता चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। लेकिन ये जरूर है कि आइंदा इस तरह के किसी वाक़े के रूनुमा होने की सूरत में जमीन पर मौजूद जिंदगी बड़े पैमाने पर मुतासिर होगी। और अगर इस इम्कान को इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो भी ये खदशा दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि कुर्बे क़यामत की एक निशानी जमीन से आग निकलना भी है। हो सकता है ये इसी तरफ इशारा हो। नाजरीन, कोविड की सूरत में दुनिया ने एक ऐसी वबा देखी जिसने मईशत तबाह कर दी और लाखों इंसानों की जान भी ले ली। पहले तो इस बात का खतरा था कोई वबाई मर्ज फूट सकता है, मगर कोविड की शक्ल में ये खदशा हकीकत बनकर सामने आ गया। हम वैक्सीन बनने के बाद इसका असर कुछ कम हुआ, मगर जरा सोचिए कि अगर कोई ऐसी वबा फैले इसका कोई इलाज ही ना हो तो फिर क्या होगा। ऐसा कि आजकल अक्सर बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक के खिलाफ मज़ाहमत करने की सलाहियत रखते हैं। अल्फर्ज कोई मर्ज हमारी अद्वियात के खिलाफ मदाफती निज़ाम बनाने में कामयाब हो जाता है और वो जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो जाता है, यकीनन वो सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर तबाह कर देगा। इसकी वजह से लोग अपने अपने इलाकों और घरों में कैद होकर रह जाएंगे। और सबसे बढ़कर ये कि इस मर्ज के मुतासरीन के अलावा इन दीगर अवामिल की वजह से फसादात फूट पड़ेंगे, हर तरफ अफरा तफरी और बेचैनी फैल जाएगी और वसाइल कम होने की वजह से जंगें शुरू हो जाने का भी अंदेशा है, जिनकी वजह से मजीद लोग मौत का शिकार हो जाएंगे।
नाजरीन, हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले वसाइल महदूद हैं, जिन्हें इंसान बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ाया कर रहा है। एक साइंसदान का दावा है कि ज़मीन पर बढ़ती हुई आबादी हमें तबाह कर सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में होने वाली तरक्की इसकी एक अहम वजह है, जिसकी बदौलत इंसानों की औसत उम्र में काफ़ी इजाफा हो गया है। दुनिया की कुल आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब हो चुकी है और माहिरीन का ख्याल है कि ये जब 9 अरब से तजावज़ कर जाएगी तो हर इंसान के लिए खुराक मुहैया करना बहुत मुश्किल होगा और वसाइल की कमी के बायस मईशत मफलूज हो जाएगी और ये सूरत हाल बिलाखिर दुनिया भर में भूख के एक भयानक अफरियत को जन्म देगी, जो दुनिया के खात्मे का बायस बन सकता है। नाजरीन, नैनो टेक्नोलॉजी वो सलाहियत है कि जिसके ज़रिए एक एटमी ज़र्रे जितने छोटे कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। साइंसदान इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि इन कंप्यूटर्स को इंसानी जिस्म में दाखिल करके उसके इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम को मदद देकर कैंसर और दीगर अमराज का इलाज किया जा सके। दूसरे कई साइंसदानों का ख्याल है कि ये नन्हे कंप्यूटर्स और भी कई मकासद और चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में इब्तदाई काम और तहकीक जारी है। दूसरी तरफ बहुत से साइंसदान ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी सब कुछ लपेट दे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दे, क्योंकि जिस तरह इंसान मसनूई जहानत वाले रोबोट्स और कंप्यूटर्स बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनमें ये रिसर्च भी शामिल है कि इंसानी जीन्स और मशीन के मिलाप से एक इंसान नुमा रोबोट या कंप्यूटर तख्लीक किया जाए, जिसमें इंसान और कंप्यूटर दोनों की खसूसियात हों और वह बाकायदा अपनी नस्ल भी आगे बढ़ा सके। सो खतरा ये है कि ये इंसान नुमा कंप्यूटर खुद मुख्तार होकर बेकाबू हो जाए और जमीन को तबाह करना शुरू कर दे। नाजरीन, किसी एस्ट्रॉइड का ज़मीन से टकरा जाना दुनिया के खात्मे का वो पहला हकीकी ख़तरा है जो इस इम्कान में हकीकत का रंग भरने की भरपूर सलाहियत रखता है, क्योंकि खला के अंदर तैरते बेशुमार एस्ट्रॉइड किसी भी वक्त हमारी ज़मीन का रुख कर सकते हैं और इनको रोकने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले एक एस्ट्रॉइड के ज़मीन पर गिरने की वजह से ही डायनासोर्स की नस्ल दुनिया से ख़त्म हो गई थी। इसलिए अब भी अगर कोई एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराया, ये न सिर्फ इंसान बल्कि यहाँ रहने वाली दूसरी मखलूक को भी खत्म कर देगा। ताहम हॉलीवुड ऐसे मौज़ूआत पर फिल्में बना चुका है। अब इन एस्ट्रॉइड्स को खलाई स्टेशनों में मौजूद खलाबाजों की मदद से या फिर जमीन से खला में मार करने वाले एटमी मिसाइलों के जरिए खला में ही तबाह करके इस मसले का मुकाबला किया जा सकता है। ताहम एक कदम और आगे जाते हुए इस ख्याल को हकीकत का रूप दिया गया है, जब हाल ही में नासा ने इसका एक कामयाब तजर्बा भी किया है और जमीन से करोड़ों मील दूर एक एस्ट्रॉइड से स्पेसशिप टकराकर इसका रास्ता बदला गया। नासा कायनात में बहुत से ऐसे एस्ट्रॉइड्स की निगरानी कर रहा है जिनके जमीन से टकराने का खतरा मौजूद है, मगर फिर भी ये इम्कान मौजूद है कि ऐसा कोई एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा जाए। हाँ, अच्छी बात मगर ये है कि किसी एस्ट्रॉइड के जमीन से टकराने के इम्कानात बहुत कम हैं। नाजरीन, गामा रेज तवानाई की एक इंतहाई तेज रफ्तार, ताकतवर और मुंह जोर नदी की मानिंद होती है, तो एटमी ज़र्रात तक को तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये बुनियादी तौर पर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को खत्म कर सकती है। सूरज से गामा रेज की हल्की रेज हर वक्त निकलती रहती हैं, मगर जमीन के इर्द गिर्द मौजूद प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे ओजोन कहते हैं, इन रेज को रोकने के लिए एक ढाल का काम करती हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि इंसान अपनी सनती तरक्की की वजह से इस इंतहाई जरूरी और अहम प्रोटेक्टिव लेयर यानी ओजोन को कमजोर करने पर तुला हुआ है। फर्ज करें कि अगर हमसे 1000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद कोई स्टार टूटकर किसी ब्लैक होल में गिरता है, तो इसके नतीजे में गामा रेज का बड़े पैमाने पर इखराज हो सकता है, और अगर इन रेज का रुख हमारी जमीन की तरफ हो जाए, ये न सिर्फ हमारी जमीन बल्कि हमारी पूरी गैलेक्सी को खत्म कर सकता है। खतरनाक बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं हमें बर वक्त इस खतरे से आगाह कर सके। जब तक हमें इस बात का इल्म होगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है इस तरह का वाकया रूनुमा होने के इम्कानात इंतहाई कम हैं।
नाजरीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मैदान में कामयाबी हासिल होने पर साइंसदान तमाम बच्चों में जेनेटिक चेंजेस करके उन्हें आज के इंसान के मुकाबले में मजीद होशियार, तेज तरार और ज़हीन बना सकते हैं। ये नई नस्ल जो बहुत ज़हीन और गैर मामूली होगी, यकीनी तौर पर इंसान के अपने हम नस्लों को जवान के मुकाबले में पसमानदा होंगे। नाकारा और धरती पर बोझ समझते हुए इन्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे ताकि इन जैसी गैर मामूली सलाहियतें रखने वाली नई नस्लें इंसानी के लिए जगह बन सके और सिर्फ वही जमीन के वसाइल से फायदा उठा सकें। यही एवोल्यूशन का उसूल है। नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का अंदाजा दुनिया के बेशतर साइंसदानों के अलावा आलमी लीडरों को भी हो चुका है और अब इस हवाले से अहम इकदामात किए जा रहे हैं। साइंसदान पुरुमीद हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के इस अमल को स्लो किया जा सकता है और शायद मुमकिन तौर पर उलट या वापस भी किया जा सकता है, जबकि दूसरे साइंसदानों के ख्याल में ये सब नामुमकिन है और बहुत देर हो जाने की वजह से अब इस मामले को बेहतर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने की कोशिश ना की गई तो मौसमों के मजीद शदीद होने, खुश्क साली, कहत और इन सब के नतीजे में होने वाले असरात से बचना मुहाल होगा और ये सब बद से बदतर होता चला जाएगा यहाँ तक कि नस्ल इंसानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।